we welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन यानी अलौकिक संपर्क में आपका स्वागत है। It's always good to share with you from God's Word. परमेश्वर के वचन में से हमेशा आपको बताना ये बहुत ही अद्भुत बात है। And if you ask me, oh, this is a purely Christian religious program, अगर आप मुझसे कहें कि ये तो केवल मसीह प्रोग्राम है, I would say, yeah, partly, and we are Christians, we believe in the Lord Jesus Christ. तो मैं कहूँगा कि हाँ, कुछ अंश में, और हम विश्वासी हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर At विश्वास the करते हैं। same time, why I'm saying it is partly is because Christianity is not purely for Christians alone, it is for all people. और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक अंश में, क्योंकि मसीहत केवल मसीह लोगों के लिए नहीं, लेकिन ये पूरी मानव जाति के लिए है। Jesus came into this world, and when he came into this world, it was said, joy to the world. यीशु इस संसार में आए, और जब वो इस संसार में आए तो कहा कि संसार में आनंद So हो। the message he brought and the thing he did on the cross of Calvary, it is not for a few individuals or for a few groups of people, but it is for all people. जो संदेश प्रभु यीशु मसीह लेकर आए वो तो केवल कुछ ही लोगों के समूह के लिए नहीं, या केवल कुछ ही लोगों के लिए नहीं, लेकिन ये तो पूरी मानव जाति के लिए है। So if you are a person watching this program who do not believe in Jesus, please continue to watch. अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं तो भी आप ये प्रोग्राम देखते रहिए, Because what I'm going to share with you may create a connection that will be very, very fruitful and long lasting in your life. क्योंकि मैं आपको जो बताने वाला हूँ शायद ये ऐसा संपर्क बनाए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके जीवन भर बना रहेगा। When we talk about, the divine connection, when we say, hey, when you are connected with God, God is our creator. He knows the best for our lives. जब हम अलौकिक संपर्क के बारे में कहते हैं और आप परमेश्वर के साथ में जुड़े होते हैं, तब हम बस यही कह रहे हैं कि परमेश्वर आपके जीवन के बारे में सबसे उत्तम जानते हैं। He knows everything about us. परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, उसे सब कुछ पता है, Because He only made us. क्योंकि उसी ने हमें बनाया है। Because when you make something personally, you know how you made it. जब आप व्यक्तिगत रूप में कुछ बनाते हैं तो आप जानते हैं कि आपने इसे कैसे बनाया है, What are the things you may use to make that? और उसे बनाने के लिए आपने किन चीजों का उपयोग किया है। If something goes wrong, how to set it right? अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है, गलत होता है, तो उसे सही कैसे करें, Oh, you are the author of it. क्योंकि आप ही ने उसे बनाया In the है। same way, God is the author of our lives. उसी तरह से परमेश्वर ने हमारे जीवन को बनाया है। That is why we say divine connection is very, very important, and God made us and we belong to Him, and that connection can produce great blessings in your life. और इसीलिए हम कहते हैं कि ईश्वरीय संपर्क बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर ने ये संपर्क किया है, हम उसके हैं, और ये संपर्क आपके जीवन में बड़ी आशीष लेकर आ सकता है। If you believe in our last program, what we shared, if you also recollect what we shared, we were talking about God as our Father. हमारे पिछले प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे थे कि परमेश्वर हमारे पिता हैं। The relevance of this thought came from celebration of Father's Day. और ये विचार तो फादर्स डे मनाते हुए आया था कि परमेश्वर हमारे पिता So हैं। generally, when you think of a father, you picture father as a very, very strict man in the family. सामान्य रूप में जब भी आप पिता के बारे में सोचते हैं तो आप सोचते हैं कि परिवार में पिता तो बहुत ही कठोर होते Very हैं। often you find, mothers always use father as a tool, to threaten the children. और अक्सर आप ये पाते हैं कि माँ जो हैं वो तो बच्चों को डराने के लिए हमेशा पिताजी का नाम लेती They है। say, hey, don't do like this. I will tell your father. वो कहते हैं देखो ऐसा नहीं करना, नहीं तो मैं तुम्हारे पिताजी को बताऊंगी। इस तरह से Hey, डराती go, है। go, sit inside. Father is coming. जाओ, जाकर बैठ जाओ, पिताजी आ रहे हैं। They kind of create a panic always when they think about the father. जब भी बच्चे पिता के बारे में सोचते हैं तो वो किसी तरह से डर As if रखते हैं, father is always with the rod and, trying to control and trying to, hit the children. जैसे मानो पिताजी हमेशा छड़ी लेकर चलते हैं, बच्चों को मारना या फिर नियंत्रित करना चाहते हैं। But, father is not like that actually. लेकिन सच में पिता ऐसे नहीं होते हैं। Father is someone who is to be understood and looked upon as with lot of love and care and with genuine affection for the family. पिता ऐसा व्यक्ति है जिसकी ओर हमें देखना चाहिए कि वो तो परिवार से बहुत प्यार करने वाले व्यक्ति हैं, परवाह करने वाले व्यक्ति हैं। Father is the one who has compassion on his children.
पिता अपने बच्चों के ऊपर करुणा करते हैं, दया करते हैं। And Psalm 103 verses 13, in the last program also as we closed, we read this verse, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. जैसे कि पिछले प्रोग्राम में हमने ये वचन पढ़ा था, भजन संहिता 103 वचन 13, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। Yes, the father always has compassion on his children. देखिए, परिवार के जो पिता होते हैं वो हमेशा अपने बच्चों पर दया करते हैं, करुणा करते हैं। God also has compassion on it. परमेश्वर भी अपनी संतानों पर दया करते हैं, करुणा करते I know हैं। when you overall study the celebration of Father's Day and Mother's Day, जैसे आप फादर्स डे और मदर्स डे के उत्सव के बारे में पूरा अध्ययन करते हैं, and always Mother's Day has a upper hand. हमेशा मदर्स डे है जो कि बहुत ज्यादा प्रभावी मानते More हैं importance is given to Mother's Day. और मदर्स डे के लिए ज्यादा महत्व दिया जाता है। The statistics reveal more phone calls are made on Mother's Day than Father's Day. गिनती इस तरह से बताती है कि फादर्स डे की तुलना में मदर्स डे में ज्यादा फोन कॉल किए जाते हैं, माँ को ज्यादा फोन किए जाते हैं। More greeting cards on Mother's Day than Father's Day. फादर्स डे की तुलना में मदर्स डे पर ज्यादा ग्रीटिंग कार्ड्स भेजे जाते हैं। More gifts purchased for Mother's Day than Father's Day. फादर्स डे की तुलना में मदर्स डे पर सबसे ज्यादा भेंट और उपहार खरीदे जाते हैं। But it is not to just compare. What I'm trying to say is the role of the father cannot be ignored. लेकिन ये तुलना की बात नहीं है, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि पिता की भूमिका को कभी अनदेखा नहीं कर सकते। Father has compassion. पिता करुणा करते हैं। How much compassion? कितनी करुणा Oh, करते हैं? my dear friends, I told you, God is our Father in the last program, and as you continue today, I want to share with you, our Father has great compassion on us, great mercy on us to discipline us. मेरे दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में देखा और अभी हम आगे देख रहे हैं, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, हमारे पिता परमेश्वर हम पर ज्यादा करुणा करते And हैं। one important illustration Jesus used in his teaching in the Gospel of Matthew chapter 7 verses 9 to 11 shows that the Father definitely gives everything that is good and the best for his children. मत्ती अध्याय 7 वचन 9 से 11 में जो तुलना यीशु ने यहाँ पर उपयोग की है वो बताती है कि पिता जो है वो अपने बच्चों को हमेशा अच्छी वस्तुएं ही देना चाहते हैं। We as earthly fathers think very much about our children, how best we can help them. हम जो पृथ्वी के पिता हैं अपने बच्चों के बारे में बहुत सोचते हैं कि हम उन्हें कितनी अच्छी चीज दे सकते हैं। Jesus is expanding on that, in Matthew 7 verses 9 onwards. Let me read it for you. यीशु इसके बारे में मत्ती अध्याय 7 वचन 9 से आगे ये समझाकर बताते हैं। Which of you, if his son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for fish, will give him a snake? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? मत्ती अध्याय 7 वचन 9 से 11 कहता है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। इस तरह से ये वचन हमें बताता है। Interesting word here is, God is calling us evil fathers. दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि परमेश्वर हमें बुरे पिता कहते हैं। We who are evil are thinking about how good or how much best we can give to our children. हम जो बुरे हैं, हम ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को कितनी उत्तम चीजें दे सकते हैं। Hey, the good God, the great God, how much care will He extend to all His children? That is an assurance I want to talk about. तो हमारे अच्छे परमेश्वर, भले परमेश्वर हमें अच्छी वस्तुएं क्यों न देंगे, इस पर मैं जोर देना चाहता हूँ, इस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। God is our Father. परमेश्वर हमारे पिता He हैं। disciplines us. वो हमें अनुशासित करते He हैं। disciplines us because of His love. वो अपने प्रेम के कारण हमें अनुशासित करते हैं। Sometimes in our discipline as earthly fathers, we might cause a lot of discomfort or difficulty in the lives of our children. जानते हैं, कई बार हम जो पृथ्वी के माता पिता है जब अनुशासित करते हैं तो हमारे बच्चों के जीवन में शायद कुछ बेचैनी In the होती book है। of Ephesians chapter 6 verse 4, Paul writes like this, Fathers, do not exasperate your children. Instead,
bring them up in the training and instruction of the Lord. इफिसियों 6:4 में पौलुस कहता है, बच्चे वालों अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। Sometimes we keep on saying things again and again. Children become angry, exasperate. क्योंकि कई बार एक ही बात हम बार बार दोहराते हैं जिससे बच्चे सच में क्रोधित हो जाते हैं। And that is not the way we have to deal. हमें इस तरह व्यवहार नहीं करना God है। is trying to teach us, God is trying to show to us very clearly how a father must deal with his children. परमेश्वर हमें दिखा रहे हैं कि कैसे एक पिता को अपने बच्चों से व्यवहार करना So चाहिए। today I want to talk about the discipline God implements in our lives many a times. आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में किस तरह का अनुशासन लेकर आते हैं। Oh, we may not like it. शायद हम उसे पसंद न करें। You know, in the last program I told you about my father. पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको अपने पिता के बारे में बताया। And more than my father, I had another person who is my uncle who disciplined me. मेरे पिताजी से बढ़कर मेरे मामा जी ने मेरे जीवन में मुझे अनुशासित किया है। As I told you, I saw my father once a year only. जैसे मैंने आपको बताया, मैं साल में एक बार अपने पिताजी से मुलाकात किया But my करता था। uncle, I was living in his house, I was living with him, and he disciplined us every day. मैं अपने मामा के घर में रहता था और प्रतिदिन मेरे मामा मुझे अनुशासित किया करते It was थे। not easy when we were disciplined. जब हमें अनुशासित किया जाता था तो ये आसान नहीं होता था। But now we know the value of it. लेकिन अब हम उस अनुशासन की कीमत जानते हैं। So therefore, God is our Father and He is interested in disciplining us. और इसीलिए परमेश्वर हमारे पिता हैं और वो हमारे अनुशासन में दिलचस्पी लेते So हैं। today, after music break, I want to share about that. इसलिए आज म्यूजिक के ब्रेक के बाद मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। We are back after the music break, my friends, and I hope you enjoyed the music. हम संगीत के ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपने संगीत का आनंद उठाया है। We were talking about God as our Father, how He is involved in our lives. हम चर्चा कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे पिता हैं और कैसे वो हमारे जीवन में जुड़े हुए हैं। We become His children when we believe in Him. जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम उसकी संतान हो जाते From हैं that moment onwards, He takes control of our और lives. उस पल से आगे वो हमारे जीवन के ऊपर नियंत्रण करते हैं। He is guiding वो us. हमारा मार्गदर्शन करते हैं। He is stopping us in so many places where we should not go. जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए ऐसी जगह पर वो हमें जाने से रोकते He is हैं। warning us through His Spirit. वो अपनी आत्मा के द्वारा हमें चेतावनी देते हैं। So His discipline is very, very real in our lives. इसीलिए उसका अनुशासन हमारे जीवन में बहुत ही वास्तविक होता है। So how we have to be disciplined by तो God? कैसे परमेश्वर के द्वारा हमें अनुशासन पाना चाहिए? Ephesians chapter 6 verse 4, I already read it for you. It says, Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. इफिसियों 6:4 हमने पढ़ा है। ये कहता है, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। And we have to bring in the training of the Lord, in the discipline of the Lord. और हमें उन्हें परमेश्वर के अनुशासन में और परमेश्वर के ट्रेनिंग में बढ़ाते You know, जाना this है। word is very, very interesting. ये शब्द बहुत ही दिलचस्प है। You know, it is the word, same word that talks about the impact of the word of God. ये वही शब्द है जो परमेश्वर के वचन के प्रभाव के बारे में हमें बताता है। 2 Timothy chapter 3 verses 16. दूसरा तिमोथियुस अध्याय 3 वचन 16 कहता When you है, read 2 Timothy 3:16, it says like this, for all scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यानी ये उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। इस तरह से ये हमें बताता है। So in Ephesians 6:4 he is saying, after saying, fathers do not exasperate your children, he says, instead bring them up in the training and instruction of the Lord. इफिसियों 6:4 है, बच्चे वालों अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो।
Training and instruction is an important word there. यहाँ पर शिक्षा और चेतावनी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। Training requires discipline. शिक्षा के लिए अनुशासन की जरूरत होती है। इसमें अनुशासन बहुत जरूरी होता है। And discipline has many instructions that must be observed carefully. और अनुशासन में ऐसे बहुत से निर्देश हैं जिसका सावधानी से पालन किया जाना बहुत ही जरूरी So होता God है। is disciplining us. God is showing us His ways. परमेश्वर हमें अनुशासित करते हैं, वो हमें अपना मार्ग दिखाते जाते हैं। In the book of Hebrews, 12th chapter, verses 5 onwards, up to 12th verse, I want to focus on this in this section. इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 वचन 5 से आगे यहाँ पर मैं गौर करना चाहता Let हूँ। me read it for you. आइए से पढ़ते हैं। And you have forgotten that word of encouragement that addresses you as sons. My son, do not make light of the Lord's discipline and do not lose heart when he rebukes you, because the Lord disciplines those he loves and he punishes everyone he accepts as a son. Endure hardship as discipline. God is treating you as sons, for what son is not disciplined by his father? If you are not disciplined, then you are illegitimate children and not true sons. Moreover, we have all had human fathers who disciplined us, and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of our spirits and live? Our fathers disciplined us for a little while as they thought best, but God disciplines us for our good, that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful later on. However, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Therefore, strengthen your feeble arms and weak knees. इब्रानियों अध्याय 12 वचन 5 से आगे, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वो तुझे धुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें, जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वो तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो जाते हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। My dear friends, I am talking about this passage. Though it is a little longer passage, it has some very, very important truths about God as our Father, how He is disciplining us. दोस्तों, मैं इस वचन के भाग के बारे में बता रहा हूँ कि निश्चय ही ये तो एक बड़ा वचन का भाग है, लेकिन परमेश्वर पिता के रूप में हमें कैसे अनुशासित करते I हैं। want to show you some important elements from this passage. मैं इस वचन के भाग से कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको First of बताऊं। all, in 12th chapter verse 6, you find God's discipline proves that God loves you. इब्रानियों अध्याय 12 वचन 6 कहता है, परमेश्वर की ताड़ना ये साबित करते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं। Because the Lord disciplines those He loves and He punishes everyone He accepts as a son. क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। इस तरह ये वचन बताता Therefore, है। when God disciplines you, it might be difficult for you, but we need to understand that He loves us, and that is why He is allowing this in our lives. और इसीलिए जब परमेश्वर आपको ताड़ना देते हैं तो आप समझ लीजिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए आपके जीवन में ये आने देते Also, हैं। in the 7th verse, God's discipline vouches that you are accepted as His son.
साथ ही वचन 7 ये बताता है कि परमेश्वर का अनुशासन दिखाता है कि परमेश्वर ने आपको पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। When you're going through some discipline God is allowing in your life, it shows to you, it proves to you that you are His son. जब आप अपने जीवन में किसी अनुशासन में से होकर जाते हैं तो ये साबित करता है कि परमेश्वर ने आपको अपना पुत्र बनाया है। ये इस बात का सबूत है कि आप उसकी संतान हैं। The other important thing we are learning from this is that we need to respect our Heavenly Father for the discipline He imposes in our lives than we respect our earthly fathers. और एक और बात ये हमें बताता है कि जैसे हम अपने पृथ्वी के पिता का आदर करते हैं, वैसे ही परमेश्वर पिता जब हमें अनुशासित करते हैं तो हमें भी उसे स्वीकार करना चाहिए, उसे ले लेना चाहिए। And the very purpose of God's discipline is mentioned in verses 10 to 11. और वचन 10 से 11 में परमेश्वर के अनुशासन का उद्देश्य यहाँ पर बताया गया है। So ultimately that we will become like Him to share in His holiness. ताकि उसकी पवित्रता में हम बिल्कुल उसी के जैसे हो जाएं। यही उसका मुख्य उद्देश्य है। Righteousness is the result, peace is the result. धार्मिकता इसका परिणाम है, शांति इसका परिणाम है। So whenever God does something, it is always for the future, something that is going to be good for your life. Right now, momentarily you may feel the strain, you may feel the struggle, yet it is going to produce great blessing in your life. परमेश्वर अभी आपके जीवन में जो कुछ कर रहे हैं, शायद वो कुछ समय के लिए दुखदाई हो, पीड़ादायी हो, लेकिन ये आपके जीवन में भविष्य में बहुत बड़ा परिणाम उत्पन्न करने वाला होता है। You know, those rules and regulations we have experienced at home, many times we feel, oh, I don't want to follow, I don't want to obey. No, I want my way, I want my will. आप अपने घर में जिन नियमों का पालन करते हैं, कई बार आप कहते हैं कि मैं इसे मानना नहीं चाहता, मैं अपनी मर्जी से, अपने तरीके से काम करना चाहता हूँ। But later on when you know how these disciplines have transformed you, helped you become a man, molded you as a righteous person, then you will realize, oh, it is God's plan so that I can be of this quality in my life. लेकिन बाद में जब आप जानते हैं कि इन सारे अनुशासन ने आपको कैसे आकार दिया है, आपको बेहतर व्यक्ति बनाया है, तब आप जानेंगे कि हाँ, ताकि मैं अपने जीवन में इतना उत्तम व्यक्ति हो जाऊं। God as a person, He loves you very much and He is very much interested in your life. परमेश्वर एक व्यक्ति के रूप में आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके जीवन में बहुत ही दिलचस्पी लेते He हैं। is a good father. वो अच्छे पिता He हैं। wants to give you more than what the earthly fathers can give. पृथ्वी के पिता जो दे सकते हैं उससे बढ़कर वो आपको देना चाहते हैं, वो बढ़कर आपको देना चाहते Earthly हैं। fathers want to give you good things. पृथ्वी के पिता आपको अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं। Heavenly Father wants to give you the best thing. स्वर्गीय पिता तो आपको सबसे उत्तम चीज देना चाहते हैं। Did we not read that in Matthew 7:9 to 11 already? हमने इससे पहले मत्ती अध्याय 7 वचन 9 से 11 में पढ़ लिया है। This Heavenly Father is interested in your life. ये स्वर्गीय पिता आपके जीवन में दिलचस्पी लेते हैं। He wants to change you. वो आपको बदल देना He चाहते wants to हैं, transform वो आपका you. रूपांतरण करना चाहते हैं। That is the fatherly role God plays in your life and my life. यही तो वो पिता की भूमिका है जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में रखी हुई है। You know, being a son of God or being a children of God, being a child of God is a great privilege that we have experienced and we are क्या enjoying. आप जानते हैं कि परमेश्वर की संतान होना ये हमारे जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य है जिसको हमने अपने जीवन में अनुभव And किया I है। want you to make use of that. मैं चाहता हूं कि आप इसका उपयोग It is कीजिए। freely given to you. You don't have to pay any money. ये आपको मुफ्त में दिया गया है, अभी आपको और पैसा देने की जरूरत नहीं है। All you need to do is to believe Him. आपको बस उस पर विश्वास करना है। And He has come into this world in Jesus Christ as God man, and He died on the cross of Calvary for you. वो इस संसार में यीशु मसीह के रूप में आए, परमेश्वर मनुष्य बने और क्रूस पर आपके लिए वो मर गए। This Jesus we are talking about said, you can come to the Father only through me. जिस यीशु के बारे में हम बता रहे हैं, उसने कहा कि तुम केवल मेरे द्वारा ही पिता परमेश्वर के पास तक पहुंच He सकते said, हो। I am the way, the truth and the life. No one can come to the Father except through me. उसने कहा मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच So सकता है। today you want to experience the Father's comfort?
तो क्या आज आप पिता की तसल्ली को महसूस करना चाहते हैं? You want to experience the Father's discipline? आप पिता के अनुशासन का अनुभव करना चाहते You हैं? want to truly experience the Father's love? क्या आप सच में पिता के प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं? You need to come to Jesus. तो आपको यीशु के पास में आना You होगा। need to believe in Jesus. आपको यीशु पर विश्वास करना And होगा। when you come to Him, when you come through Him, definitely you will experience the Father's blessings in your life. जब आप उसके पास में आते हैं, उसके द्वारा आते हैं, तो अपने जीवन में परमेश्वर पिता की आशीषों का अनुभव कर पाएंगे। आप उन आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे। It is open to you. ये सब आपके लिए खुला है, Anybody who believes. चाहे जो भी विश्वास करे। And He is inviting you today. और आज वो आपको न्योता देते हैं। May God give you His grace to respond to Him in a positive way. परमेश्वर आपको अपना अनुग्रह दे कि आप उसे सकारात्मक रूप में प्रत्युत्तर दें। May God bless you and your family today. परमेश्वर आज आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number